Hello students, welcome back to our YouTube channel Shiv Shakti Study Mind. The examination date for UP Board Examination 2025 are out. The exams are going to be held from 24th of Feb to 12th of March. You have not much time left. So we are discussing the questions how to write in the board examination. These questions are very important for the exam prospectus. So be careful, be attentive and be with us for the whole part of the video so that you can get what to write and how to write. Today's video is for English. We will discuss about how to write long questions in English paper for class 10th. This question is from lesson 1, a letter to God. We will discuss about the theme of the letter. In this, there is a farmer named Lancho who wrote a letter to God for help, asking 100 pesos for his betterment and future wellness. There is always a question when this chapter comes. There is always a question. It can be asked from many types, but the answer will be the same. We are going to write the answer in 100 to 150 words. This is the criteria for the answer, which are the long answer type question in English for class 10th. You have to write within this limited criteria, more than 100 and not more than 150 words. For this you have to be patient and very careful while listening the video. This video is going to be in Hindi and English for both of the students, either you are from English medium or Hindi medium of UP board, because English is the subject which you have to write in English only. We will discuss the question in Hindi also. Okay, now let's get started. The question is simple. Give the character sketch of Lencho. Give the character sketch of Lencho. This question can come with different titles. Give the character sketch of Lencho according to a letter to God, or give the character sketch of Lencho according to G.L. Funes, who is the writer of the story, or write down the character sketch of Lencho, who is the main character of a letter to God. Write down his character. What do you like in the Lencho's character? Discuss. Discuss the character sketch of Lencho. Means it can be written anytime, but there will be a common word which is Lencho or character sketch. Means when there is the question about Lencho, it only asks about his character sketch. Means how was his behavior in the story and how he has G.L. Funes has written about Lencho. So we are going to discuss about the question. First, you have to write some introduction without any heading. Lencho is the main character in the story A Letter to God, written by G.L. Funes. Here are some of his characteristics. This is my own answer. I have not copied any of the books or further any other side books or any type of help I have taken from the
Apart from the question, I have not seen any type of book. You have to write in your own words which will affect the examiner more and more. So, first character is of Lencho is a poor man. Lencho was a poor farmer. His crops was destroyed by hailstorms. Nobody had helped him, so he was worried and sad. Second, faithful. Lencho was a faithful person who believed in God, that God would help him in his time of need. Next, Lencho was innocent. Next heading is innocent. Lencho was a simple and innocent man who believed that God was a living person who could send money. Next characteristic is hard worker. Lencho was a hard working farmer. Lencho was a hard working farmer who worked in his field like an ox. Why we compare Lencho as ox with ox? Because ox is the most hard working animal. Next one is family man. Lencho was a family man. He loved his family and was worried for them. When the hailstorms destroyed his crops, he was worried about the future of his family. Next character is he was optimistic. Lencho was an optimistic person who did not lose hope even after losing his only source of income. His only source of income was his crop, which was destroyed by hailstorm. And after the destruction, he goes to his field and watch all the crops destroyed, but he didn't give up his hope and he believes that God would help him. Now we will discuss the whole question in Hindi for betterment of all the students. अब हम बात करते हैं, ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लेंचो का कैरेक्टर स्केच आपको लिखने के लिए आता है, तो आप 100 से 150 शब्दों में इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये मेरा खुद का है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन आपका लिया है, बाकी सारा कुछ मैंने अपने से लिखा है। अगर आप भी अपने से इसको लिख सकें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, इसीलिए मैं इसे हिंदी में भी समझाने जा रहा हूं। आप लेंचो के बारे में अपने से हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। अगर आप वहां से नहीं देख पा रहे हो तो आप इन हेडिंग्स को आसानी से कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है और आप आसानी से अच्छे से इसको समझकर लिख सकते हैं। लिखना कितने, 100 से 150 शब्द, 100 से कम नहीं और 150 से ज्यादा नहीं। आइए देखते हैं। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। लेंचो जो कहानी है आपकी ए लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जीएन फ्यूंस ने, उसमें प्रमुख पात्र है। कैरेक्टर माने पात्र होता है, प्रमुख पात्र है, कहानी का प्रमुख पात्र है। उसकी कुछ चारित्रिक विशेषताएं या उसकी चरित्र की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। गरीब आदमी, क्यों? क्योंकि लेंचो एक गरीब आदमी था। गरीब नहीं होता तो अगर किसी का खेत बर्बाद हो जाए तो दुखी होगा क्या? नहीं होगा। हम तो सोचते हैं कोई बात नहीं, हम खरीद के खा लेंगे, मगर उसके पास पैसे नहीं थे, वो बहुत गरीब था, छोटी सी झोपड़ी में रहता था। लेंचो एक गरीब किसान था। उसका जो पूरा का पूरा फसल थी वो चक्रवाती तूफान में नष्ट हो गई थी, जिस कारण से, और उसने मदद मांगी तो किसी ने उसकी सहायता नहीं की, जिस कारण से वह चिंतित और दुखी था। दूसरा, फेथफुल, मतलब कि आशावान या भगवान के प्रति श्रद्धा वाला। लेंचो एक आशावान या भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति था, जिसको ये विश्वास था कि उसकी जरूरत के समय भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। अगला उसका जो गुण है वो है क्या? इनोसेंट, मतलब कि दिल का साफ या सच्चा, दिल का सच्चा, दिल का साफ या अच्छा आदमी। लेंचो एक बहुत ही साधारण और नरम प्रकृति का या ईमानदार प्रकृति का
आदमी था जो ये सोचता था कि भगवान एक खुद भी कहीं भगवान रहते हैं, वो जीवित व्यक्ति हैं और मैं उनसे मदद मांगूंगा एक चिट्ठी लिखकर तो वो मुझे मेरी मदद करेंगे। उसको ये नहीं पता था कि मैं चिट्ठी लिखकर भेजूंगा तो भगवान तो कहीं है नहीं, चिट्ठी पता नहीं कहाँ जाएगी, उसको पता नहीं मालूम था। भगवान का पता किसी को नहीं मालूम। हम ये मंदिर में ये सोचकर जाते हैं कि भगवान वहां पर विराजमान है और हमारी बात सुनते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। भगवान का पता किसी को नहीं पता है। हम नहीं जानते कि वास्तव में भगवान कहां पर मिलेंगे। अगला, हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रमी था वो। क्यों? क्योंकि वह अपनी खेत में एक बैल की भांति काम करता था। बैल से लेंचो का कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बैल सबसे परिश्रमी जानवर होता है, बहुत ही ज्यादा परिश्रम करता है, जिसका परिणाम भी अच्छा उसको मिलता है। इसलिए लेंचो का जो कंपैरिजन है वो बैल के साथ किया गया है। अगला, फैमिली मैन, लेंचो एक पारिवारिक आदमी था। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार को बहुत प्यार करता था और जब उसकी फसल खराब हो गई हेलस्टॉर्म यानी चक्रवात के बाद, तूफान के बाद, तो उसने सबसे पहले यही सोचा कि अब मेरे बच्चे और मेरी घर वाले किस प्रकार से आगे अपना जीवन बताएंगे, कैसे भोजन ग्रहण करेंगे या कैसे हमारा जीवन चले, क्योंकि वही उसके एकमात्र आमदनी का जरिया था। अगला, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आशावादी। लेंचो एक आशावादी व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि उसने उसकी सारी फसल खराब हो जाने के बाद, जो कि उसके कमाई का एकमात्र जरिया था, जो कि तूफान की वजह से खराब हो गई थी, उसके बाद भी उसने अपने मन से निराशा को बाहर कर रखा था। उसके मन में आशा जगी हुई थी कि भगवान उसकी सहायता करेंगे और इसीलिए उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने 100 पैसे मांगे, जो कि हम सभी को पता है, हमने कहानी पढ़ी है, जो कि उसने किसने पढ़ी? डाकघर के जो डाकिया था, डाकघर का जो पोस्टमैन था, पोस्टमास्टर था, उसने पढ़ी और उसने उसकी सहायता करने का निर्णय लिया और सबके साथ मिलकर उसकी सहायता जिससे जितना उनसे हो सकती थी उतना उन्होंने की भी। इस प्रकार से हम लेंचो के कैरेक्टर स्केच को अच्छे से डिफाइन करके लिख सकते हैं। अगर आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिखते हो तो भी बहुत अच्छा है, और अगर आप ओन वर्ड्स अपने नहीं देख पा रहे हैं तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं। ये किसी बुक से कॉपी मैंने नहीं किया, ये मैंने अपने से खुद से लिखने का और बनाने का प्रयास किया है, जिससे आपको समझ में आए कि हमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है। जितना पूछा जाए, जैसे पूछा जाए, जितना आपको बताया जा रहा है, जो हेडिंग्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी, इसीलिए इजीएस्ट वे में और सिंपल वे में आपको समझाने का मैंने प्रयास किया। दोनों लैंग्वेजेस में समझाया, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। इस बात को समझे और अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर लिख कर आ पाए, जिससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले। हमारा प्रयास पहले भी रहा था, अब भी है और आगे हमेशा यही रहेगा कि आप अच्छे से अच्छे नंबर पाएं, अच्छे से अच्छी आपकी तैयारी हो। सारे के सारे बच्चों के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हो, हमारा समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे कंटेंट्स को वो पूरा वॉच करिए जो आपकी बेनिफिट के लिए हमने बनाए हैं। बहुत ही सरल, सहज और आसान भाषा का प्रयोग हमने करने का प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी कठिनाई महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर करा सकते हैं। साथ ही साथ आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में और सुझाव हमारे वीडियोस को अच्छा बनाने के लिए दे सकते हैं। साथ ही साथ कंटेंट को लाइक जरूर करिए और अपने सभी सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करिए, जिससे वो भी अच्छे से अच्छा नंबर पा सके। हमारा उद्देश्य ही है आपको 90% से ऊपर पहुंचाना। इसके साथ ही हर सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जहां से हर साल क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में हमने अलग अलग वीडियो हमारे
चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम है बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 स्पेशल। आप वहां प्लेलिस्ट में जाकर सारी के सारे वीडियोस देख सकते हैं। वहां आपके लिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ टिप्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ कैसे क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के, वो हमने सीरीज शुरुआत कर दी है और डेली आपको मिलता रहेगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन आए और आपको पता चल जाए कि हाँ नया वीडियो अपलोड हुआ है। डेली आपको एक वीडियो हम देते रहेंगे आपके एग्जामिनेशन टाइम तक। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे एग्जामिनेशन टाइम तक, तो हमारा ये वादा है कि आप आसानी से 90% के ऊपर क्रैक कर ले जाएंगे। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।